سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کراچی گلستان جوہر میں مبینہ پولیس مقابلے میں جاں بحق شیرخوار احسن کو آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ غمزدہ ماں کا رو رو کر برا حال ہے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کہتے ہیں کہ پولیس صوبائی حکومت کے کنٹرول میں نہیں، اسے ضابطے میں لائیں گے۔ 4 سپاہی تھے موٹر سائیکلوں پہ، 2 موٹر سائیکلوں پہ، وہ آپس میں لڑ پڑے، کوئی چور نہیں تھے، کوئی دھاڑل نہیں تھے، یہ آپس میں لڑ پڑے، انہوں نے ایک نے دوسرے کو گولی ماری ہے، وہ گولی میرے بچے کو لگی۔ وزیر بلدیات سعید غنی کہتے ہیں پولیس حکومت کے قابو میں نہیں۔ یہ تو بنیادی اصول انصاف کا عدالتوں کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی 100 گنہگاروں کو آپ چھوڑ دیں لیکن کسی ایک بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ وہی اصول لاگو ہونا چاہیے کہ کوئی مجرم اگر اس لیے بچ جاتا ہے کہ اگر آپ گولی چلائیں گے تو اس کی زد میں کوئی بے گناہ آ سکتا ہے تو ہمیں اس پہ گولی نہیں چلانی چاہیے۔ ایس ایچ او سچل گوٹ جاوید ابڑو کا کہنا تھا کہ اہلکاروں نے تھانے آ کر مقابلے سے آگاہ کیا تھا، بعد میں بچے کی ہلاکت کی اطلاع ملی۔ اس ڈاکو نے ان پہ میرے پولیس والوں پہ فائر کیا تھا، ڈاکو جو بھاگ گیا تھا، تو اس کے جواب میں جو ہے نا میرے پولیس والوں نے ڈاکوؤں پہ فائر کیا تھا، جو رات کو انہوں نے ہمیں کلیئر، اب مزید اور بھی کلیئر کرنا۔ مقتول احسن کے ورثاء نے واقعے کی جوائنٹ انویسٹیگیشن کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین راہیل احمد کے ہمراہ دانیال سید، 24 نیوز، کراچی۔ اور آئی جی سندھ کلیم امام نے پولیس کی فائرنگ سے 1.5 سالہ بچے احسن کی ہلاکت پر معافی مانگ لی۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس کو اپنی ٹریننگ کا معیار بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ سندھ پولیس نے صوبے میں امن و امان کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں۔ غلطیوں کی نشاندہی ضرور کی جائے لیکن ہماری نیتوں پر شک نہ کیا جائے۔ وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس قسم کے جو واقعات ہیں میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ افسوسناک ہیں اور ہم ریگریٹ کرتے ہیں اینڈ وی آر اپالوجیٹک اینڈ وی آر سیئنگ سوری، غلطی ہوئی ہم سے۔ اس کے علاوہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی غفلت شامل ہے یا ان کی لاپرواہی تھی، ہم ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ سندھ پولیس نے تقریباً 61 آفیسرز کو سب کارروائی کی ہے، جن میں سے 26 لوگوں کو ڈسمس کر چکے ہیں، اور جو لوگ پراپر طریقے سے اپنا پروفیشنلی کام نہیں کرتے ان کو ہم سخت سزا دیں گے، باقیوں میں ہم تربیت لائیں گے تاکہ وہ بہتر کام کر سکیں۔ جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ معصوم شہریوں کی ہلاکت کے بعد معافی مانگنا کافی نہیں، ایسے اہلکاروں کو آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا، سندھ پولیس کا قبلہ درست کرنا ہی ہوگا۔ کراچی میں پولیس کے ہاتھوں 1.5 سالہ احسن کی ہلاکت پر وزیر اعلیٰ سندھ پولیس پر برس پڑے اور آئی جی سندھ کی معافی کو ناکافی قرار دے دیا۔ آزاد اس طریقے سے ہو جائیں کہ جو چاہے کرتے پھر اور بعد میں معافی مانگ لے، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ پچھلے 7-8 ماہ میں یہ 6واں یا 7واں واقعہ ہے جو ہوا ہے۔ جس کو اسلحہ دیتے ہیں، ایک ویپن کسی کے ہاتھ میں دینا، اس کو یہ لائسنس نہیں دے دیتا کہ وہ مارتا پھرے لوگوں کو۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ پولیس اہلکاروں کا یہ عمل کسی طور پر قابل قبول نہیں۔ 4 پولیس والے آتے ہیں اور اندھادھند فائرنگ کر کے جس سے ایک معصوم کی جان چلی جاتی ہے، یہ کسی بھی طریقے سے معافی کے قابل یا کسی بھی طریقے سے جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پولیس میں سیاسی مداخلت کے الزام پر بھی پھٹ پڑے اور کہا کہ ہمیں سیاست کی اجازت کسی اور نے نہیں، صوبے کی عوام نے دی ہے، اب پولیس کا قبلہ درست کرنا ہی پڑے گا۔ سیاست کی اجازت ہمیں صوبے کے لوگوں نے دی ہے، سیاست کی اجازت کہ ہم پولیس کو، باقی اداروں کو، پھر تو ہر چیز میں سیاسی مداخلت ہے، سیاستدان کی ضرورت ہی نہیں ہے، حکومت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ جو ہے من ماری کرتے پھرے تو وہ سیاسی مداخلت کہیں یا جو کچھ بھی کہیں، ان کو ہمیں درست کرنا پڑے گا ان کا قبلہ۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جس واقعے میں پولیس ملوث ہوتی ہے اس کی تفتیش بھی پولیس کرتی ہے۔ جہاں پولیس انوالو ہوتی ہے انویسٹیگیشن بھی پولیس ہی کر رہی ہوتی ہے، تو ایک مضبوط کیس بنا کے انشاءاللہ کورٹس کے حوالے کریں گے ہم، اور امید یہ ہوگی کہ کورٹ انصاف کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور مشیر اطلاعات نے احسن کے والدین سے تعزیت کی اور انہیں ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کروائی۔ میرے محافظ ہی میری جان کے دشمن بن گئے، یہ ہے دہائی شہر قائد کے مکینوں کی، جہاں آئے روز پولیس اہلکار سڑکوں پر گولیوں سے کھیلتے ہوئے انسانی زندگیوں سے کھیلنے لگے۔ چند ماہ کے دوران 6 معصوم شہری ناحق مارے جا چکے ہیں۔ کراچی میں محافظ ہی قاتل بن گئے، جن کا کام جرائم پیشہ افراد سے شہریوں کو بچانا ہے، وہی ان کی جان کے در پہ آ گئے۔ آئے روز معصوم شہری اپنی ہی محافظوں کا شکار بننے لگے۔ گزشتہ روز یونیورسٹی روڈ پر پولیس کی مبینہ فائرنگ سے 19 ماہ کا احسن بھی جان سے گیا۔ 6 اپریل کو قائد آباد میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران 12 سالہ سجاد فائرنگ کی زد میں آ کر
मौत की आगोश में जा पहुंचा। फरवरी में डॉक्टर बनने का ख्वाब आंखों में सजाए। यूनिवर्सिटी से लौटने वाली निमरा भी अंडा मोड़ के करीब पुलिस मुकाबले की जद में आकर जिंदगी की बाजी हारी। इससे कबल गुज़िश्ता बरस अगस्त में अख्तर कॉलोनी सिग्नल के करीब वालिदैन के साथ गाड़ी में सवार नन्ही अमल को भी पुलिस की ही गोलियों ने वालिदैन से जुदा किया, जबकि शारा फैसल पर पुलिस एहलकारों की जानिब से रिक्शे पर फायरिंग के नतीजे में शहरी मकसूद जाँ बहक हुआ। डिफेंस में सीएलसी एहलकारों की फायरिंग से गाड़ी में सवार नौजवान इंतजार अपने ही मुहाफिजों के हाथों मारा गया। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। अब आपको बताएं कि किसान की साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया। गंदम की कटाई के मौसम में बारिश से फसलें तबाह हो गईं। सोने जैसी गंदम बारिश के पानी में बह गई। मकई और कपास के अलावा आम की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। में तूफानी बारिश की तबाहकारियां जारी हैं। शदीद बारिशों और सैलाबी रेलों के बायस पंजाब भर में गंदम की तैयार फसलें तबाह हो गईं। फैसलाबाद में गुज़िश्ता रात बरसने वाली बारिश से गंदम की फसल मुतासिर हुई। टोबा टेक सिंह, चनियोट, जंग, सरगोधा, गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट में भी बारिश और ओले पड़ने से हजारों एकड़ पर गंदम की फसल तबाह हो गई। किसानों का कहना है कि कटाई का अमल भी ताखीर से शुरू होगा। बारिश आ रही है, अल्लाह की रहमत है और साड़ियां फसलां खराब हो गई ने सारियां। मुल्तान, रहीम यार खान, कोटअदू, लैया, पिंडी, घेब, ओकाड़ा, दीपालपुर, कसूर और भक्कड़ समेत कई इलाकों में भी मुसलसल होने वाली बारिश ने गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचाया। डेरा गाजी खान में गंदम के खेत तबाह हो गए। बहावलपुर में भी बारिश से गंदम की फसल बर्बाद हो गई। तोंसा शरीफ में भी हजारों एकड़ पर खड़ी फसल पानी में डूब गई। बारिशों के मौसम में गंदम की कटाई और इसकी हिफाजत के लिए काश्तकार परेशान दिखाई देते हैं। उधर खैरपुर में तूफान बारिश और हवाओं से जहां गंदम और खजूर की फसल तबाह हुई, वहीं आम के बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। पंजाब और बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों और नदी नालों में तुग़यानी से 4 रोज में 50 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार गए। कई बस्तियां और देहात तबाह हो गए। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज बादल जमकर बरसे। मुल्तान में तूफान से दुनियापुर रोड पर आबाद दर्जनों बस्तियां तबाह हो गईं। अक्सर इलाकों का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। कई किलोमीटर पर बिजली के खंभे उखड़ गए। मुतादिद अफराद जाँ बहक और लातादाद जख्मी हो गए। सखी सरवर और कबायली इलाकों में कोहे सुलेमान पर होने वाली बारिशों से नदी नाले बिफर गए। बस्ती रुझान और सखी सरवर को मिलाने वाली सड़क बह गई। शुजाबाद, लैया, बहावलपुर, रहीम यार खान समेत जनूबी पंजाब के इलाके आज भी बारिश की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुए। फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, चनियोट, झंग, सरगोधा, गुजरांवाला, सियालकोट और गुजरात में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बलूचिस्तान में चमन के इलाके किला अब्दुल्ला, गवादर, सिब्बी, पशीन, दुखी, हरनाई, कोहलू, किला सैफुल्ला ज़ियारत समेत कई अजला में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी और सैलाब से बेशतर देहात ज़ेरे आब आ गए और राब्ता सड़कें शदीद मुतासिर हुई। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह तो कर दिया, लेकिन 50 लाख घरों की तामीर के सिलसिले में रकम और साजो सामान कहां से आएगा, ये अभी तक किसी वजीर और सरकारी अफसरों में से किसी ने नहीं बताया। वज़ीर आज़म ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह तो कर दिया, लेकिन 50 लाख घरों की तामीर के सिलसिले में रकम और साजो सामान कहां से आएगा, ये अभी तक किसी वजीर और सरकारी अफसरान में से किसी ने नहीं बताया। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के प्रोजेक्ट का आज आगाज हो गया। 50 लाख घर बनाने का मिशन क्या मुमकिन हो पाएगा? रकम और साजो सामान की दस्तयाबी पर महदूद वसाइल ने सवालिया निशान लगा दिए। हुकूमत की तरफ से 5 साल में 50 लाख घर बनाने के सिलसिले में 1 साल में औसतन 10 लाख घर बनाने की जरूरत है। सरकारी अंदाजे के मुताबिक 10 लाख घरों की तामीर की कम से कम मजमूई लागत भी 48 खरब रुपए से जायद बनती है, लेकिन इतना कर्ज कौन देगा, इसको अभी ढूंढना बाकी है। क्योंकि मुल्की बैंकों के पास मजमूई वसाइल के पेश नजर अगर बैंक दूसरे तमाम शोबों और सनतों को कर्ज देना बंद करके सिर्फ इस मंसूबे को कर्ज देना शुरू कर दें, तो भी 1 साल में 13 खरब रुपए के लगभग ही कर्ज दे सकते हैं। वजीर आज़म का कहना था कि नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम में सरमायाकारी के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है। अगर इन लाइन में लगे लोगों से पैसा मिल भी जाए तो घरों की तामीर के लिए सीमेंट, सरिया, ईंटें और दूसरा तामीराती सामान भी चाहिए। साल में 10 लाख घरों की तामीर के लिए कम से कम भी 2 करोड़ टन सीमेंट चाहिए। पाकिस्तान सीमेंट इंडस्ट्री की मजमूई पैदावार गुंजाइश के मुताबिक मामूल की जरूरियात पूरी करने और
बरामदात मुकम्मल बंद करके भी 1 साल में सिर्फ 82 लाख टन सीमेंट ही दस्तयाब हो सकता है। यही सूरत हाल ईंटों, सरिये और दूसरे तामीराती सामान की है। नया पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के मौके पर वजीर हाउसिंग को नाकाम सरकारी प्रोजेक्ट्स खूब याद आते रहे। की तारीख में इससे ज्यादा क्रेडिबल और इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट शायद ही आप देखेंगे। जुनेजो भी घर बनाने में नाकाम हुए, हैदराबाद की स्कीम भी न चल सकी, नवाज शरीफ के रिहायशी प्लाजे ठप हो गए, बड़े मंसूबे की बड़के मारने वाले शुरू में ही नाकामियों के हवाले देने लगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के मौके पर वजीर हाउसिंग अनोखी मिसालें देते नजर आए। मंसूबा कैसे कामयाब होगा ये तो बताया नहीं, अलबत्ता पुरानी सरकारी स्कीमों की नाकामी को खूब खोल खोल कर बयान करते रहे। 1986 में हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने खुदा की बस्ती के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया, वो आज भी आप जाकर देखें वो मुंह से चढ़ा रहा है। 1987 में मोहम्मद खान जुनेजो साहब ने, 1996 में नवाज शरीफ साहब के दूसरे दौर में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ कि वो प्रोजेक्ट टेक ऑफ नहीं कर सका। आशियाना, मशहूर जमाना आशियाना हाउसिंग स्कीम, कि कितनी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां इस प्रोजेक्ट में हुई हैं। लगता है मेगा प्रोजेक्ट के पायलट ने शायद पुरानी स्कीमों की नाकामी को ही अपनी कामयाबी समझ लिया है, तभी तो हर नाकाम स्कीम का नाम ले लेकर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। जनाब वजीर आजम, इस मुल्क की बदकिस्मती देखें कि शायद ही 1 या 2% घर होंगे जहां पर लोगों की रिहाइश होगी, बाकी तमाम घर क्योंकि ना उनका प्रॉपर सर्वे हुआ, ना उनकी डिमांड को मद्देनजर रखा गया। वजीर हाउसिंग साहब ये इत्मीनान का नहीं बल्कि परेशानी का मकाम है, क्योंकि तारिक बशीर चीमा ने जिन नाकाम हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले दिए वो नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट से 1-2 नहीं बल्कि कई गुना छोटे मंसूबे थे। सोचने की बात यह है कि अगर हुकूमत की वो छोटी छोटी स्कीमें कामयाब ना हो सकी तो क्या मौशी बदहाली की शिकार हुकूमत 50 लाख घरों का मंसूबा पूरा कर पाएगी? विफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में एक बार फिर टैक्स एमनेस्टी स्कीम के खदोखाल पर इतफाक नहीं हो सका। बेनामी जायदाद और डिक्लेरेशन पर भी अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात, जबकि अवामी ओहदे के हामिल शख्स के बहन भाई के फ़ायदा कुनिंदा होने पर भी इख्तिलाफ़ात सामने आए हैं। वज़ीर आज़म ने कमेटी को मज़ीद मुशावरत की हिदायत कर दी है। मज़ीद जानिए बशीर चौधरी की रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में असासाजात ज़ाहिर करने से मुतालिक एमनेस्टी स्कीम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। ताहम तहफ़्फ़ुज़ात और कानूनी रुकावटों के बायस एमनेस्टी स्कीम पर इत्तफ़ाक़ राय न हो सका। काबीना इजलास में एमनेस्टी स्कीम रेट्स पर इत्तफ़ाक नहीं हुआ तो वहीं पर बेनामी जायदाद की डिक्लेरेशन पर भी अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। अरकान ने कहा कि स्कीम से पब्लिक ऑफिस होल्डर्स बहन भाई भी फ़वाइद हासिल नहीं कर सकेंगे। बाज़ अरकान ने मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल में स्कीम की कामयाबी पर भी सवालात उठाए। वफाकी वज़ीर कानून फारूक नसीम ने काबीना को खबरदार किया कि एमनेस्टी स्कीम में बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर मबनी शिकें शामिल हैं। अगर ये शिक अदालत में चैलेंज होगी तो दिफा मुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर खजाना की सरबराही में कमेटी को स्कीम पर मजीद काम करने की हिदायत करते हुए कहा कि स्कीम को अदालत में चैलेंज करने की सूरत पर लाहे-अमल तैयार किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में कहा कि एमनेस्टी स्कीम के तमाम मुजवज़्ज़ा पहलुओं का जायजा लेने के बाद आइंदा काबीना इजलास में पेश कर दिया जाएगा। असद उमर अच्छा बजट बनाएं और वजारत बचाएं। वजीर खजाना असद उमर को वजीर आजम इमरान खान ने अहम टास्क सौंप दिया है। बजट अच्छा ना देने की सूरत में असद उमर की वजारत तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। बशीर चौधरी की रिपोर्ट देखिए। खजाना असद उमर का फाइनल इम्तिहान शुरू। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आइंदा माली साल का अच्छा और मुतवाज़न बजट पेश करने की जिम्मेदारी सौंप दी। ज़राए का दावा है कि असद उमर ने अच्छा बजट पेश ना किया तो वो वजारत से हाथ धो बैठेंगे। ज़राए बताते हैं कि फिल वक्त बतौर वज़ीर खजाना बजट 2019 और 20 असद उमर की आखिरी असाइनमेंट ही होगा। ज़राए का कहना है कि ब्रिगेडियर इजाज शाह को वज़ारत दाखिला का कलमदान सौंपे जाने का भी इम्कान है। शरियार अफरीदी वज़ीर ममलकत दाखिला ही रहेंगे। बशीर चौधरी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि करप्शन के खात्मे के लिए किसी दबाव या सिफारिश को खातिर में नहीं लाया जाएगा। अब किसी को डर नहीं बनने देंगे। लाहौर में निजी हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन से खिताब करते हुए चेयरमैन नैब का कहना था कि करप्शन तमाम बुराइयों की जड़ है। कोई भी फर्द नैब तहकीकात पर असर अंदाज नहीं हो सकता। नैब की तहवील में किसी को भी हथकड़ी ना लगाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि नैब के 900 अरब रुपए मालियत के 1210 रेफरेंसेस मुख्तलिफ एहतसाब अदालतों में दायर हैं। चंद दिनों में करोड़पति बनने वालों को सोचना चाहिए कि कफन की जेब नहीं होती। चेयरमैन नैब ने निजी हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन में 73 करोड़ रुपए के चेक्स भी तकसीम किए।
ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नए बहरान ने सर उठा लिया। गवर्निंग बोर्ड के अरकान ने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बगावत कर दी। एमडी पीसीबी वसीम खान की तकर्री और डोमेस्टिक क्रिकेट का मुजव्वजा स्ट्रक्चर भी मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी कहते हैं कि जो फैसले हो चुके वो तब्दील नहीं होंगे। वर्ल्ड कप से कबल ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़े बहरान का सामना, कप्तान के चेयरमैन को मुश्किलात ने आन घेरा। कोयटा में पहली बार पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ। गवर्निंग बोर्ड के अरकान ने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बगावत कर दी। 7 में से 5 ने फैसले मानने से इनकार कर दिया। डोमेस्टिक क्रिकेट का मुजव्वजा स्ट्रक्चर और वसीम खान की एमडी तकर्री को कलअदम करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीसीबी का कहना था कि वसीम खान की तैनाती बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का फैसला था। गवर्निंग बोर्ड की तजावीज़ ना मानना मुमकिन नहीं। हमने एमडी को रखने से पहले बोर्ड से मंजूरी ली थी। ये सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है और इनका जो एजेंडा था, अफसोस की बात है क्योंकि 5 लोगों ने वो कागज़ एक साइन किया था जिसमें से 4 ऑलरेडी शामिल थे मीटिंग्स में जहां ये चीज़ें अप्रूव हुई हैं। उधर बोर्ड अरकान ने भी अलग से मीडिया गुफ्तगू कर डाली। उनका कहना था कि पीसीबी आइन में एमडी की कोई गुंजाइश नहीं। पिछले इजलास में तजवीज़ रखी गई थी और आज के इजलास में वो सारी चीज़ें तय नहीं थी, लेकिन जब हम सब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आइन रिव्यू किया तो उसमें एमडी की कोई गुंजाइश नहीं है। ज़राए के मुताबिक मामलात बिगड़ने पर पीसीबी के पैटर्न इन चीफ वज़ीर आज़म इमरान खान चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी से नाला हैं। वो मामलात को सुलझाने के लिए बोर्ड पर एडहॉक लगाने का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिलसिले में गवर्निंग बोर्ड को तहलील करके पीसीबी पर 3 माह के लिए एडहॉक लगाए जाने का इम्कान है। और साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी का कहना है कि एहसान मानी ने जल्दबाजी की, मुशावरत के बगैर फैसला किया गया। इसी बिना पर यह मसला हुआ। ये क्रिकेट की तारीख का अहम मसला है। एहसान मानी को पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। की चीजें तो चेयरमैन कर लेता है, मगर जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज होते हैं उसके लिए उनको वापस बोर्ड के पास जाना पड़ता है अप्रूवल के लिए, जो अहम फैसले होते हैं। हाँ, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला पहले ही कर लिया कि जी हम बोर्ड से उनके पावर्स ले लेते हैं और फिर जो चाहे हम कर लें। तो ये मेरा ख्याल है इसके ऊपर ज़्यादा लड़ाई हुई है। दूसरा इशू जो उन्होंने खड़ा किया है कि वो उन्होंने ये कहा कि और उन्होंने आखिर में ये लिखा है कि जी जो एमडी अपॉइंट किया गया है और जो ये पोस्ट क्रिएट किया गया एमडी का, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, वो ये पूछा गया उनसे कि जी मानी साहब का ये मौक़िफ़ है कि ये तो पहले आपने ओके कर दिया था, और वो कहते हैं हमने ओके नहीं किया था, हमने ओके किया था कि आप लेके आए यहाँ उसको हम रेटिफाई करेंगे, मगर उसके बाद हमने आइन में देखा, आइन में तो गुंजाइश ही नहीं है। ठीक, और आपने ओके सर्कुलर रेजोल्यूशन से किया था, कोई बहस नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए हमने अब इसको देखा है इसके ऊपर और हम इसके ऊपर मुठा नहीं लगाने। मिशन वर्ल्ड कप 2019 के सिलसिले में कौमी क्रिकेट टीम के कैंप का पहला फेज खत्म हो गया। मेगा इवेंट के लिए टीम का ऐलान कल चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक करेंगे। मुंतखब स्क्वाड वज़ीर आज़म इमरान खान से जुमे को मुलाकात करेगा। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी की वज़ीर आज़म से 1-on-1 मुलाकात भी होगी। आज कैंप के दूसरे रोज़ इमाद वसीम, मोहम्मद हफीज़ और मोहम्मद हसनैन के फिटनेस को बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। आपको बताएं कि कराची के यूनिवर्सिटी रोड पर 1.5 साला एहसन की मौत के वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। सीसीटीवी फुटेज में मुतासिरा फैमिली को रिक्शे की तरफ बढ़ते देखा जा सकता है। 1.5 साला एहसन को वालिद की गोद में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। 7:19 और 16 सेकंड्स पर रिक्शे के आगे से गुजरने वाली मोटरसाइकिल से फायर हुआ। 7:19 और 20 सेकंड्स पर ताकुब करते पुलिस एहलकारों की जानिब से 2 फायर हुए और 1 गोली एहसन के सीने में लगी, जिससे वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। यूनिवर्सिटी रोड कराची में ये वाक़या पेश आया था। 1.5 साला एहसन मुबैना तौर पर गोली का निशाना बना था और बेकरी से निकलते हुए रिक्शे की जानिब बढ़ रहे थे, जिस दौरान एक मोटरसाइकिल गुजरती है और पुलिस उसका ताकुब करती है और इसी दौरान फायरिंग का तबादला होता है। एहसन के सीने में गोली लगी और वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। पंजाब के तरक्याती बजट के 238 अरब रुपए में से सिर्फ 100 अरब ही इस्तेमाल हो सके हैं, जिस पर बुज़दार साईं ने सेक्रेटरीज को खरी खरी सुना दी। पंजाब के तरक्याती बजट के 238 अरब रुपए में से सिर्फ 100 अरब भी इस्तेमाल हो सके। मजीद तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली रामे से। अली, क्या वजूहात सामने आ पाई हैं, क्यों ये बजट इस्तेमाल नहीं हो पाया?
بالکل علی، یہ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آج وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہے 2018-19 کا، اس کے جائزہ اجلاس جو ہے ہوا تھا. تو رواں مالی سال کے دوران جو ہدف مقرر کیا گیا تھا پنجاب حکومت کی طرف سے، وہ 238 ارب روپے کا بجٹ استعمال کرنے کا ہدف دیا گیا. لیکن جو بیوروکریسی ہے پنجاب کی، انہوں نے کہا کیا کیونکہ پنجاب کا خزانہ خالی ہے تو پنجاب کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ کا مکمل بجٹ جو ہے وہ استعمال کر سکے، اور جو وفاق کی طرف سے شیئر ملنا تھا وہ مکمل شیئر جو ہے وہ بھی نہیں ملا. تو اس وجہ سے جو پنجاب کے پاس اپنے محصولات ہیں، اسی ریونیو جو ملتا ہے اسی پر جو بجٹ جاری کیا گیا، وہ 150 ارب سے زائد کا بجٹ جو ہے وہ جاری ہو سکا، اور اسی پر ہی 100 ارب کا بجٹ استعمال کیا. تو اس پر وزیر پنجاب نے باقاعدہ طور پر برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے بجٹ جو ہے اگر کم استعمال کریں تو 238 ارب کا بجٹ 2 ماہ میں کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ 2 ماہ باقی ہیں. تو جولائی سے نیا بجٹ جو ہے وہ پنجاب حکومت شروع کرنے جا رہی ہے، لیکن ابھی تک صرف 100 ارب روپے کا بجٹ استعمال ہوا. تو اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے پاور کیا تمام صوبائی محکموں کو کہ اگر بجٹ مکمل استعمال نہ کیا گیا تو اس پر متعلقہ محکمے اور صوبائی وزراء جو ہے وہ ان کی مکمل رپورٹ بنائیں. اور وزیر اعلیٰ کی جانب سے برہمی کا بھی اظہار کیا گیا ہے. بہت شکریہ علی رام میں آپ نے اپڈیٹ کیا. نون لیگ نے بلدیاتی انتخابات میں حکومتی حمایت یافتہ امیدواروں کو شکست دے دی. گجرات سے طاہر مانڈا میئر منتخب ہو گئے، جبکہ ڈیرہ غازی خان میں سید دلاور شاہ نے ڈیپٹی میئر کی نشست پر کامیابی حاصل کی. رانا مظفر پھلروان نے میونسپل کمیٹی جڑاوالا کی نشست جیت لی. نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے کامیاب امیدواروں کو کامیابی پر مبارکباد دی ہے. پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر تھامس ڈریو نے پاکستانی قومی ترانے کی دھن کو انتہائی لاجواب قرار دے دیا. اور اس بلیٹن سے اتنا ہی.